Hello guys, welcome to our today's lecture for oral pathology. It's a continuation of developmental disturbances. From this section, at least two or three short notes or one full question can be asked. If you're lucky, they will ask you 7 mark question, and if you're unlucky, they might ask you 5 marks question, which might be somewhat difficult. But this is not a mugging or you have to write word to word. It is the exam where you have to able to write 5 to 6 sentences on some topic. So for writing this, you have to split all these answers in some sections. For example, definition, etiology, in this way, and then you have to recall without seeing this book. So when you go to give exam, it is not that you have to recall or you have to write what you have marked up. You have to just think that you are the patient and you are having this disorder. What features you will be seeing in your mouth? How will you differentiate it from other disorder? All these things you have to remember. So in short, we are AI Medical Dental Academy providing you education on dental platform. For all the dental exams, we'll be guiding you, we'll be providing you support, what to do, what not to do. We'll start today's lecture. Today's lecture is on our developmental disturbances. That's a topic of enamel hypoplasia. Okay, this is environmental enamel hypoplasia. So in the previous lecture, I have already mentioned you what is hypoplasia. It is decrease in number. Decrease in number. So what will be decreased? Here they are telling that enamel hypoplasia will be there. So it means that due to the number decrease of ameloblast, these cells are responsible for forming enamel. There will be a quantitative defect, not qualitative. Quantitative defect. Enamels will not be formed properly. Okay. So as I mentioned that you need not mug up. What you have to do is you have to remember in this way. First of all, decrease in number of cells. Okay. Then what happens? Due to this decrease in number of cells, its quality will be disturbed or cells will not be proper. Enamel hypoplasia. So hypoplasia meaning decrease number, that is quantity. Due to this defective enamel will be there, and that is called enamel hypoplasia. Now as I have mentioned that you should be able to write few points. For example, your enamel is defective. So what is the function of enamel? It protects us against sensitivity. Okay. These are the normal functions. And due to this problem, this will not be protecting the teeth. Due to the lack of enamel, we will be or the patient will be having more sensitivity. Then color. Tooth color, enamel provides a white translucent color. Here it might be white or brown. Then shade will be different. Translucency will be different. Then strength will be less. Translucency affected.
shade will be brownish to yellow because the underlying dentin will be exposed. So what I mean is, even if you don't read or don't mug up, you can write these questions. You have to just write in this way. First of all, you will write definition. You can write in this way flowchart also. Then clinical features. What will be the clinical features? Then it's treatment. What will happen in treatment? So you have to go for cosmetic or aesthetic purpose. Smile designing can be there. We can go for veneers. Composite can be used for veneers. Many treatment options will be there. Okay. Now, apart from these three features, these 3 points, we can go with the stage. At what stage this disturbances is there? The fourth point. Okay. Now we will go with this question. If you're having any doubt, you tell me. Okay. So first of all, they're telling that it is an incomplete defective deformation. Okay. As I mentioned that due to the disturbances in some of the stage, there will be lack of cells. Hypoplasia will be there. So incomplete or defective formation will be there. Of what? Of enamel matrix. Organic enamel matrix will not be formed. So enamel will not be formed properly. Now it's a quantitative defect. Thickness will be reduced. In which phase is affected? Secretory phase of amelogenesis. So our second point, stage of development. This is definition. Okay, 1 minute. The first point is its definition. Second is stage of development. Now clinical feature. Here we are having translucent or opaque, single, multiple pits will be there, and complete absence of enamel sometimes might be there. Okay. Now is enamel hypoplasia? Its site. Clinical feature. We will write site. It's in incisal or cuspal 1/3 of the crown. Okay. Now sometimes complete dentition will be involved or only one tooth will be involved. So this is one more thing. How many teeth will be involved? Sometimes only enamel will be involved and sometimes dentin will also be involved. Okay, mostly enamel will only be involved, but so they are telling that due to this defective enamel, our dentin will also be affected. Now causes. These are the causes. Due to nutritional deficiency, एक्जेंथमेटस डिसीज, अननोन इटियोलॉजी होती है जो बचपन में होता है, स्कारलेट फीवर है, चिकन पॉक्स है, सब वायरल फीवर जो बोलते हैं वो, कंजेनाइटल सिफिलिस, फिर हाइपोकैल्सीमिया, बर्थ इंजरी, लोकेशन, इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स और इडियोपैथी. ठीक है, इटियोलॉजी. नाउ इट्स क्लिनिकल फीचर्स. दे आर टेलिंग दैट इन केस ऑफ माइल्ड नॉट सीवियर, all the features will be affected very lightly, few small grooves. Then if it is severe, what will happen? Deep pits will be there. Pit means khadda. ठीक है? Or sometimes in most severe cases, what will happen? Enamel will be lost. तो आपको ऐसे ही क्लिनिकल फीचर में बता देना है. माइल्ड में क्या होगा, ऐसा टेबल बना देना है. मॉडरेट में क्या होगा, और सीवियर जब आए ना तब यहाँ पे कंप्लीट इनेमल को गायब कर दो. ठीक है, तो ऐसे आपको ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, कहां से, यहां से यहां तक, उसका ये टेबल ही बना देना है. तो पैराग्राफ में आप कम लिखोगे तो टाइम बचेगा. ठीक है. नाउ जब मतलब टाइम ऑफ hypoplasia, it results only if the
injury at the time of teeth are developing. ठीक है? What happens? The time of enamel hypoplasia, it happens only when the teeth is developing. At that time, if there is any disturbances in the stages of tooth development, then only injury will be there. Okay? Otherwise, what happens? If in a permanent tooth, if there is an injury, there will be no hypoplasia. And during the formative stage of enamel development, as I mentioned, that stage of development is important. During the formative stage or during matrix formation, if there is a disturbances, then there will be enamel hypoplasia. Now once enamel has calcified, no such defect can be produced. As I mentioned that in permanent tooth, there will be no such defect. Okay. Now, if we are telling that at the age of 6 to 4 years or 4 to 5 years, there might be some injury. So we can tell that at what time or what number of teeth are involved. And same vice versa, if few teeth are involved only, then we can tell that at this time injury was there. Why? Because every teeth has its own sequence of eruption timing. Okay, in case of 6 months, we have lower central incisor in case of deciduous dentition. Okay, now they are describing it every etiological enamel hypoplasia. For example, first enamel hypoplasia due to vitamin A deficiency. So what is the features in this? In this, they will have, first of all, it is of ectodermal origin. Okay, only epidermis is primarily affected due to vitamin A. Okay, sometimes teeth also will be affected due to vitamin deficiency. Now, what will happen in A vitaminosis A or deficiency of vitamin A? Marked metaplasia of enamel organ, and so there will be defective enamel formation. तो ये जितने भी कॉज है ना, वो ऐसा बता रहे हैं, वो बार बार एक ही चीज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? देखो मैं आपको वो समझाता हूँ लिखने का. ये क्या है कि कोई भी चीज है ना, उसको आप इलेबोरेट कैसे कर सकते हो, वैसे आपको लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेस लिखोगे आप, तो आपने बहुत लिख लिया कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है, एक्सैंथेमेटस डिसीज है, कंजेनाइटल सिफिलिस है. ऐसे बहुत सारे कॉज लिख लिए. अब आप कोई भी कॉज ले लो. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस. तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कि इट अफेक्ट्स enamel development during formative stage, so defective enamel. अब यहाँ पे डिफेक्टिव इनेमल है ना, उसमें आप लिख सकते हो कि पीट्स होगी इनेमल पर, कलर चेंज आ जाएगा ऐसा. तो बस ये जो मैंने लिखा है ना नीचे का, वो सब में कॉमन आएगा, आपको रटने की जरूरत है ही नहीं. आप यहाँ कोई भी टाइटल बदल दो, नीचे का यही कॉमन लिख देना है. सारे में थोड़े वर्ड्स बदल देने हैं. यहाँ पे अफेक्ट्स लिखा, नीचे लिखना है कि इन द फॉर्मेटिव स्टेज देयर विल बी डिस्टर्बेंसेस, थोड़े वर्ड्स बदल देना है. तो ऐसे करके आप इसको आधे कलाक तक लिख सकते हो, और 5 मार्क्स में तो कम भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ऐसे आपको लिखने की आदत अभी डालनी पड़ेगी. तो ये जो लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पर, है विटामिनोसिस, फिर सेम आएगा विटामिन डी डेफिशिएंसी. तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये भले नोट्स में दिया है मैंने, आपको रटना नहीं है. मैंने आपको टेक्निक समझा दी कैसे वो याद रखना है.
ये चीज मत भूलना, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप कॉलेज की एग्जाम में जैसे 12th पढ़ते हो ऐसा आप पढ़ना चालू कर देते हो. दिस इज नॉट ए मगिंग competition. It's a thinking and logical writing exam. Okay. Now, if you are writing congenital syphilis, a few points you should know. In congenital syphilis, we have this Hutchinson's teeth and mulberry molars. ठीक है, दो दांत को वो अफेक्ट करेगा, तो ये भी चीज आपको ऐड कर देनी है. अगर आपके पास टाइम है तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे दो इंसाइजर्स लिखिए, यहाँ पे मोलर्स बनाइए. ठीक है, तो लिखिए कि कंजेनाइटल सिफिलिस, मोलर्स और इंसाइजर्स अफेक्टेड. ऐसे ऐसे डायग्राम भी कर सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, ये खाली मेन चीजें आपको याद रखना है. हाइपोकैल्सेमिया होगा, बर्थ इंजरीज होगी, वो सब आपको अपनी तरह से फिर क्वेश्चन लिखवाना है. फिर जब ट्रॉमा होता है ना तो टर्नर टूथ हो जाता है, ये आपको खाली याद रखना है, क्योंकि टर्नर टूथ है ना वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. वो टूथ डेवलपमेंट के टाइम देयर विल बी ट्रॉमा टू द टीथ एंड सो देयर विल बी चेंजेस इन द टीथ पैटर्न. दिस इज कॉल्ड टर्नर्स टूथ. जो टूथ है ना वो अपने शेप में बदल जाएगा. तो आगे तो पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन लिखना है. लास्ट में ट्रीटमेंट यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंसिडरेशंस. इफ देयर इज ए defect in the aesthetics or a looking purpose, we have to go for aesthetics or veneers. It all depends upon the patient consideration as well as its budget. So in this way you have to write this question. Sometimes they are asking this question for 7 marks, so you have to write first of all index in your notes, and if it is asked for 7 marks you can elaborate it. If it is asked for less marks you can short it or go for the comprehensive answer. Till now, if you have any doubt, you can comment. Otherwise, we will move forward. Our next topic is cleft lip. ठीक है. Now, what happens in cleft lip? There will be defect in the lip formation. Both the sides bilateral lip will be developed, and if there is any problem of lip parts to fuse, there will be a defect in the lip. So cleft lip means lip will not be fused properly. So this is called cleft lip. In case of cleft palate, there will be defect in the palate, because both the palatal portions, when they're developing, they will come near each other and go with the fusion. Right side palate and left side palate. Same way here, right side lip and left side lip. Okay. Now our next topic is cleft lip. As I mentioned that what is cleft lip? One side portion as well as other side portion fusing each other and will result in complete lip. Okay. Now if there is a defect, in the fusion, there will be cleft lip. Okay. Etiology. What will be the etiology? So whenever you write etiology, I also already mentioned you. First of all, etiology will be idiopathic. That will be in all regions. So you have to write this point at the last.
but this is common in all. Okay, what are the other etiologies? The nutritional factors will be formed when during the development of lip. Then maternal smoking. If the mother is smoking during pregnancy, there are chances of cleft lip. Then stress during pregnancy, ischemia to the area during the development of lip, there might be blood stoppage or blood supply will be less. Mechanical obstruction. For example, when the lips are being fused, tongue is so large that lips are unable to fuse each other. Then steroid therapy during pregnancy, म्यूकोपॉलीसेकेंड मैकेनिज्म इन्फेक्शंस. तो यहाँ पे जितने इटियोलॉजी है ना वो आप अपनी तरह से वो याद रख सकते हो. ठीक है. अब पैथोजेनेसिस, व्हाट हैपेंस. तो सी इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिप you should understand what is the process of formation. फॉर्मेशन में क्या होता है, जो कॉपुला होता है ना उससे मैंडिबुलर आर्च बनती है ठीक से. ठीक है, कॉपुला से mandibular arch बनती है. Now if there is a defect in this stage, lip will not be formed properly. Okay, and sometimes in the mandibular process there will be a groove between the mandibular process, so this will interfere the complete lip formation. तो आपको ये पैराग्राफ में बताने से अच्छा है आपको कैसे बताना है मैं आपको समझाता हूं. आपको ऐसे समझाना है कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेफ्ट. ठीक है, तो डेफिनेशन, incomplete fusion of lip processes या mandibular process. So this will result in cleft lip. Now etiology. So what is etiology? All the problems during pregnancy. मदर को टेंशन है, मदर खाती नहीं है, मदर की ब्लड सप्लाई में दिक्कत है, मदर को चक्कर आ गए, all will be the problems. And the main etiology is during embryonic development some problem will be there. Okay, now it's embryologically consideration. Copula forms into mandibular arch. There will be a disturbance in this process due to any of the reason like pregnancy, trauma, pregnancy stress, etc. First reason and second reason is there will be a consistent groove in mandibular process. So you have to write in this way in your exam. Okay, cleft lip, definition, etiology, and embryologically. Okay. Now we move to our original paragraph answer. Clinical features. It happens mostly in males. Then it's mainly unilateral type. Then problem will be having in breastfeeding. Okay, so in this case prosthodontist play a role. They provide feeding plate. Okay, then phonation और articulation में दिक्कत है. Mental trauma to the child हो सकता है.
ठीक है। क्लेफ्ट लिप का क्लिनिकल फीचर्स, मेल्स में ज्यादा यूनिलेटरल, तो आपको एग्जाम में खाली यही लिखना है कि इंक्रीज्ड मेल्स, या ऐसे भी लिख सकते हो। फिर क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट को ब्रश फ्री नहीं दे सकते, फोनेशन में दिक्कत है, आर्टिकुलेशन में, और खराब दिखता है पेशेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो कॉस्मेटिक अप्रोच है, स्पीच का ठीक से डेवलपमेंट कराओ, आप प्रोसेसिस भी दे सकते हो, या ऑर्थो का कोई अप्लायंस है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में क्या होता है, फ्लोरोसिस में कोई लिमिट होता है, जो वाटर होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें एक लिमिट होती है फ्लोराइड की। ठीक है। उससे अगर ज्यादा फ्लोराइड लेते हो आप वाटर में, ठीक है, इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंटेंट in water, so this disturbs the enamel formation. ठीक है। in this way there will be a defective enamel. खाली कलर में दिक्कत होगी, याद रखना, फ्लोरोसिस में खाली कलर में दिक्कत होती है, लेकिन वो कैरीज में ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। फ्लोराइड अगर ज्यादा आ गया पानी में तो क्या करेगा वो, डेवलपमेंट के टाइम वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ फ्लोराइड और हाइड्रोक्सीडाइड क्रिस्टल्स बनाएगा, और वो खाली कलर को इफेक्ट करता है फ्लोरोसिस। ठीक है। लेकिन ज्यादातर फ्लोरोसिस हो गया तो वो कभी कभार ब्रिटल हो जाएगा, टूथ स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगी। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लोरोसिस होता है ना, जब तब क्या होता है, डेवलपमेंट में टाइम फ्लोराइड पानी के अंदर ज्यादा है और वो इनेमल के फॉर्मेशन में अफेक्ट करता है। फ्लोराइड और हाइड्रोक्सीपेटाइट दोनों मिलकर क्रिस्टल्स में बन जाते हैं और कलर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे फ्लोरोसिस का ईटियोलॉजी वगैरह सब समझाया हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, हाइपो मिनरलाइजेशन है, क्योंकि दांत में क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेसाइड होता है क्रिस्टल्स। ठीक है। और कैल्शियम वाले, वो दोनों मिलकर दांत को बनाएंगे। फ्लोराइड का कोई काम नहीं है। फ्लोराइड जो होगा कंटेंट वो थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन ऐसे सोचो कि ज्यादा फ्लोराइड आ गया तो जाके वो दिक्कत होगी। तो क्या होगा, जो हमारा मिनरल्स चाहिए कैल्शियम वाला, हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाला, वो कम होगा। तो क्या ये प्रॉब्लम है, ये है हाइपो मिनरलाइजेशन डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये इरिवर्सिबल है, एक बार वो हो जाता है वो वापस ठीक नहीं होता है कोई दवा से। ठीक है। फिर क्या क्या होगा कलर में, तो ट्रांसल्यूसेंट, नॉर्मल जो कलर होना चाहिए वो पोरस और ओपेक हो जाएगा। ठीक है। टीथ आपको कंप्लीट वाइट लगेगा। आदमी बंद करना, आदमी बंद, वाइट opaque tooth will be there, and sometimes it will be seeming that chalk जैसा कलर है दांत के ऊपर। ठीक है। फिर क्लाउडी लाइंस होगी, ब्राउन लाइंस भी होगी, व्हाइट भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ये सब उसके फीचर्स है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे लिखना है। कोई भी फीचर्स लिखना हो तो आपको पहले क्या लिखना है, कलर लिखना है, स्ट्रेंथ लिखना है, फिर उसकी क्या लिखना है, ट्रांसल्यूसेंसी दिखनी है, फिर उसका एस्थेटिक लिखना है, फिर उसका ब्रिटलनेस लिखना है, कैरीज रेसिस्टेंस लिखना है, सेंसिटिविटी लिखना है, सरफेस प्रोटेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है फ्लोराइड से बचने के लिए, आप समझिए, फ्लोराइड को आप अगर बचना है तो फर्स्ट 3 to 6 years ऑफ लाइफ, जब परमानेंट टीथ आते हैं ना, तो वो कब आते हैं, 2.5 years से बनना चालू होता है।
ठीक है, और 6 ईयर तक वो बनते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे फ्लोराइड लेवल में ध्यान रखा तो कोई दिक्कत नहीं, इनेमल बन जाएगा सब दांत का, तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ फ्लोराइड कैसे इफेक्ट करता है, ऐसे यहाँ पे स्टेजेस बताए। तो पहले सेक्रेटरी फेज पर, ठीक है, जब एमिलोजेनेसिस होता है ना, उसका सेक्रेटरी फेज है, तब यहाँ पे वो क्या करता है, मैट्रिक्स फंक्शन को कम कर देता है और मैट्रिक्स कंपोजिशन बदल देता है। ठीक है, जब सेक्रेशन होता है फेज में, तब जाके मैट्रिक्स प्रोडक्शन कम कर देता है और चेंज कर देता है, और आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो पहले सेक्रेटरी फेज, अब दूसरा मैचुरेशन फेज। एक बार सेल्स सेक्रेट हो गए, फिर सेल्स को मैचुरेशन होना है, मैच्योर होना है। उसमें क्या करेगा वो, प्रोटीन और वाटर को विड्रॉ कर लेगा, अंदर जो न्यूक्लिएशन बन रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है, उसको कम कर देगा, और कैल्शियम का जो बैलेंस है उसको भी खराब कर देगा। तो क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट होगा, फ्लोराइड भी ज्यादा रहेगा, और टूथ को जो नॉर्मली कैल्शियम लेवल होना चाहिए, नॉर्मली जो फ्लोराइड लेवल होना चाहिए, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार टूथ इरप्ट हो गया, फ्लोराइड ज्यादा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, खाली टूथ इरप्शन से पहले इनेमल के जो स्टेजेस है, सेक्रेटरी फेज और कौन सा मैच्योरेशन फेज, उसमें ये अफेक्ट करता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इफेक्ट में यहाँ दो टेबल बना देना है, सेक्रेटरी और मैच्योरेशन। ठीक है, फिर आपको यहाँ से फीचर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस अफेक्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या है, ये सब स्ट्रक्चर में अफेक्ट करते हैं, यानी कि जब डेवलपमेंट होता है इनेमल का, तब कोई दिक्कत आती है तो वो बोलते हैं हम एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिजेनेसिस इम्परफेक्टा, इनेमल हाइपोप्लेसिया, डेंटिन डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये वाला क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है इनेमल का, ये वाला क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। ठीक है, सेम ये डेंटिजेनेसिस में क्वांटिटेटिव और ये सब क्वालिटेटिव। ठीक है, फिर एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इफेक्ट करता है, लेकिन मेजोरिटी क्या होता है, सेल्स की क्वांटिटी कम होगी, जो इनेमल बनाता है एमिलोब्लास्ट होगा वो कम होंगे, इसलिए इनेमल क्वांटिटी कम होगी तो वो ठीक से इनेमल बनेगा नहीं, इसलिए ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि वैसे ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नाउ फॉर मेजर कैटेगरीज, ये सब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्या क्या है, हाइपोप्लास्टिक यानी कि सेल्स कम हो जाना, हाइपोमैचुरेशन यानी कि वो जब मैच्योर हो रहा है, जब कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो वो डिफेक्ट आता है। फिर आता है हाइपोकैल्सिफाइड, ठीक है, जब कैल्शियम के क्रिस्टल्स ग्रो हो रहे हैं तब जाके डिस्टर्बेंस हो रहा है। और चौथा है हाइपोमैचुरेशन और हाइपोप्लास्टिक, क्या है, सेल्स भी कम है एमिलोब्लास्ट वाले, और उसकी क्वालिटी भी कम है, वो ठीक से छोटे छोटे सेल्स बने रहते हैं, और वो ज्यादा बड़े नहीं हो रहे, मैच्योर नहीं हो रहे। मैच्योर हो जाते हैं तब जाके वो कैल्शियम रिलीज करेंगे, कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे और एनिमल ठीक से बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन दिया है टाइप्स। टाइप 1 ए क्या है, आपको अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो आप अपनी तरह से ये थोड़ा बना देना होता है। ठीक है, एग्जामिनर को भी कभी कभार क्या होता है, याद नहीं होता है। ठीक है, इतना ज्यादा तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। खाली आप अगर ये याद रखो, टाइप 1 में हाइपोप्लास्टिक, टाइप 2 में हाइपोमेचुरेशन, टाइप 3 में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, इतना भी याद याद रख सकते हो।
टाइप 4 में है हाइपोमैचुरेशन, हाइपोप्लास्टिक विथ टोरोडोंटिज्म। ठीक है। नाउ हिस्टोपैथोलॉजी, फिर से बता रहा हूं आपको बार बार कि जब भी हिस्टोपैथोलॉजी आए तो भले आपको आता है नहीं आता है, डायग्राम अच्छा वाला आप पेज में ड्रॉ कर दो और जो भी यहाँ लिखा है वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। कोई एग्जैक्ट हिस्टोपैथोलॉजी होती नहीं है। इसमें क्या आता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन डिफेक्ट है, इसलिए सेल्स की साइज कम होगी, मैच्योर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ लिखो कि स्मॉलर एमिलोब्लास्ट, फिर डिफेक्टिव मैट्रिक्स, डिफेक्टिव कैल्शियम, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है। तो पहले तो क्या बताया कि हाइपोप्लास्टिक होता है ना, उसमें सेल की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, या मैट्रिक्स कम होगा। हाइपोकैल्सिफिकेशन में मैट्रिक्स में डिफेक्ट होगा, और हाइपोमैचुरेशन में जो इनेमल रॉड बनेंगे, इनेमल के अंदर इनेमल रॉड्स और रॉड शीट होती है, वो थोड़ी खराब होगी। और ग्राउंड सेक्शन ऑफ टीथ, ठीक है, उसमें क्या लगेगा आपको, वेरी थिन इनेमल दिखेगा आपको। तो यहाँ पे लिखो ऐसे कि थिन इनेमल, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर आता है रेडियोग्राफिक फीचर्स। तो अभी आपने क्या नोट किया, हिस्टोपैथोलॉजी और ऊपर का क्लिनिकल फीचर्स, दोनों में एक ही चीज लिखा है। तो आपको इसमें भी ऐसा ही याद रखना है कि ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो आपको सेम कंटेंट लिखना भी आना चाहिए। ठीक है। अब रेडियोग्राफिक फीचर्स में, तो इनेमल क्या वीक होगा ना, तो दांत के ऊपर का जो लेयर होगा ना वो डिफेक्टिव होगा, अदरवाइज कंप्लीट रेडियो ओपेक जैसा लगता है। यहाँ पे क्या होगा, इनेमल कभी कभार कंप्लीटली एब्सेंट होगा या थिन लेयर होगा। ठीक है। कहाँ का, टिप्स ऑफ कस्प और इंटरप्रोक्सिमल सरफेसेस पर। फिर कभी कभार कैल्सिफिकेशन इतना खराब होगा तो वो डेंटिन जैसा दिखेगा, और डेंटिन और इनेमल को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कंपोजिशन अलग है, ट्रांसल्यूसेंसी अलग है। तो हम रेडियोग्राफ में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट बार बार बता रहा हूँ, इनेमल में जब भी डिफेक्ट आए ना, तो पहले तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अगर पेशेंट को एस्थेटिक में दिक्कत है तो आप कंपोजिट विनियरिंग कर सकते हो, स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घोस्ट टीथ। ठीक है। खाली घोस्ट टीथ भी क्वेश्चन आ सकता है, वन लाइनर में भी और 5 मार्क्स में भी। तो क्या है वो, तो देखिए, रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया, दांत के अंदर बराबर से कुछ डिफेक्ट होगा और ऐसा लगेगा कि आपको दांत के होस्ट जैसे लग रहे हैं रेडियोग्राफ में। ठीक है। होस्ट ड्रॉ करने की ट्राई की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कैसा दिखेगा वो, कोई बात नहीं। अब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, जो भी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पे है वो सब बता देना है। इनेमल थिकनेस अलग है, प्रिज्म स्ट्रक्चर इरेगुलर है। तो जब भी देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नॉर्मल जो होना चाहिए वो याद करना है, और उसका लिखना है कि ये नहीं होगा ठीक, ट्रांसलूसेंसी ठीक नहीं होगी, कलर ठीक नहीं होगा, डेंटिन कम होगा, रिडेंटिन लेयर ज्यादा होगा, इंटरग्लोबुलर डेंटिन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ये रटने की चीज नहीं, 5-6 सेंटेंस आपको बना देने हैं अपने हिसाब से। वो कोई आपके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं नहीं। तो कभी कभार आप ऐसे भी क्वेश्चन आए घोस्ट टीथ वाले, तो आपको लिखना है कि इनेमल ठीक से नहीं बना, डेंटिन ठीक से नहीं बना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आता है। उसमें हिस्टोलॉजी में क्या क्या आएगा, डिफेक्टिव इनेमल, improper enamel rods, improper dental tubules, ऐसे सब हिस्टोलॉजी में आप करके भी मार्क्स ले सकते हो। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया है और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब इनेमल हाइपोप्लासिया का क्लासिफिकेशन, जो भी हमने ऊपर किया ना क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इनेमल हाइपोप्लासिया वही है, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है।
और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही किया। एक्सैंथेमेटस डिसीज, कंजेनिटल सिफिलिस, वो सब उसके फैक्टर्स में आएंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? माइल्ड, थोड़े होंगे ग्रूव्स, मॉडरेट और सिवियर, ज्यादा, कम और मीडिएट। फिर आता है हाइपोडोंसिया। क्या होगा हाइपोडोंसिया में? एक या सारे दांत का डेवलपमेंट कम होगा। नॉर्मल टीथ ये है तो वो थोड़ा ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है हमने आपको क्या क्या समझाया है। ये हम बिना देखे आपको करवा देते हैं। देखिए 2 मिनट रुकिए। तो पहले देखिए, अभी मैंने आपको जो समझाया ना अभी तक लेक्चर, उसमें आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझनी चाहिए। ये है हाइपोडोंसिया, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा? पहले तो इसकी डेफिनेशन। बना क्या?